Hi, I'm Sanjay Mishra, Chief Security Officer of Radisson Blu Hotel, New Delhi, Paschim Bihar. Keeping in mind our motto of ensuring safe and secure experience for guests and workplace for staff, and with a view to prepare ourselves for any emergency situation, we are conducting an emergency evacuation mock drill today in association with Delhi Disaster Management Authority. The scenario of today's mock drill is that there is an earthquake causing the gas pipeline to burst and ultimately resulting in a major fire. Besides the DDMA officials, the other agencies participating in the mock drill would be the Delhi Police, the Delhi Fire Service, CATS Ambulance, Civil Defence Volunteers, MCD, etc. So, here we go. Exit signages and proceed to the assembly area. Do not use the lifts. Thank you. भागो तुम लोग आगे ऑफिस में बुला रहे धीरे से अभी कितना बचा है? अभी कितने बचे? कोई बात नहीं। अंदर जाओ। अभी
एक और ले लो, एक और ले लो, बैग हटा दो, बैग हटा दो, एक और ले लो, और ऊपर कर दीजिए, और थोड़ा ऊपर कर दीजिए, आ जाएगा ये, कोई नहीं, खुला रहेगा दरवाजा, हिप के नीचे है, हिप के नीचे, ये बेटा पकड़ो, आप आगे निकल जाओ, चलो चलो आगे निकलो, चलो बेटा आगे Good evening, everybody. It's a great pleasure for me to address such a prestigious audience. I would like to welcome Deputy Commissioner Mr. Meena, ADM Mr. Banka, and SDM Mr. Gupta, Mr. Pradeep Gupta, DCP Mr. Rishi Pal, and ACP Mr. Satish Yadav. It was really a great opportunity for us to have this kind of drill in our hotel, which I believe has been done for the first time in any 5-star hotel. So we are really on behalf of the hotel, I would like to thank all the top dignitaries and all other officials of all the agencies for having participated in this exercise and making it a great success. Now I would like to request Mr. Meena to say something. Thank you. Thank you. We have bothered you on this occasion, but it was necessary because Delhi is already in Zone 4, seismic Zone 4, and probably it is going to be Zone 5 because it is reported that the hitting of the Indian plate with the Asian plate is, the frequency of the hitting has increased. So it is being considered by the scientists to declare the Zone 5. So it will be very, very dangerous situation. So we have to be all very in a prepared state. So first of all, I would like to ask the hotel staff that what was their response time when the siren was there. Then how much time the entire hotel staff took to get out. It was basically evacuatory period. So it took about 7 minutes. In 7 minutes, all the employees and everybody got out. And but did you request to some these inhabitants also? Sir, we had put a letter in their rooms that we'll be conducting a mock drill today, and we requested them to cooperate in that. We did not ask them
7 minutes is still good time to evacuate. But in a crisis situation, it will reduce to 5. Because in our mental backup, there is a situation that it is a mock drill. So if we convert into a real situation, so I hope it will be, we all will come out in 5 minutes. और जॉब 5 में भी आने की संभावना है. सेकेंडली, जिस लोकेशन पे ये होटल है वो स्टैंड भी सेकंड कैटेगरी की है. आई मीन जो फर्स्ट कैटेगरी है वो आपका अरावली रेंज के आसपास जो है. यहाँ अरावली की रेंज नहीं है, अरावली रेंज आपके नीचे नहीं है. तो जो सॉइल है वो लूज सॉइल है, तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है, यमुना बेड से बेटर है, बट लूज सॉइल है ये भी एक्चुअली. इसलिए जो है सारे प्रिकॉशंस हमें जियोलॉजिकली सोच करके सारा जो है जितने सारे प्रिकॉशन प्रॉपर्ली लेने चाहिए. Sir, I would like to introduce our Managing Director, Mr. Manmohan here. इसलिए हम इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि अर्थक्वेक एक और अर्थक्वेक ऐसा है कि अभी तक जो देखा गया है वो तभी आया है जब ह्यूमन बीइंग मोस्ट अनप्रिपेयर्ड. जितने अर्थक्वेक आए हैं उस सिचुएशन में आए हैं जब हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होते हैं. और ठीक भी बात है, अर्थक्वेक कह के तो आएगा नहीं का समस्या जो आएगी. इसलिए कॉन्स्टेंट प्रिपेयर्डनेस मस्ट है. हमारा स्ट्रेस यही है कि कॉन्स्टेंट प्रिपेयर्डनेस मस्ट है. एवरी टाइम अलर्ट होना जरूरी है. और जैसे ही पता चलता है कोई भी बात होती है, जो इंस्ट्रक्शंस है अर्थक्वेक इवैक्यूएशन के, उस पर ट्रेनिंग सबको दी जाए, सब फॉलो करें. आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा भी आपके होटल के अंदर अभी आप छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा था, मॉक ड्रिल जिसे हम कहते हैं. वो हम लोग इसलिए कराते हैं कि ताकि आप लोगों के अंदर जागरूकता जागृत रहे, ताकि आप लोग इस चीज़ के अंदर आगे बढ़ के हिस्सा लें. ताकि हम लोग ये इसलिए कराते हैं कि आप लोग करें अपने लिए, दूसरों के लिए बाद में. पहले हम लोग अपने आप को बचाने की सोचते हैं. कहते हैं ना, हम लोग सबसे पहले खुद बचेंगे तभी तो दूसरे को बचाएंगे ना. अगर हम लोग खुद नहीं बच सकते तो दूसरे की जान कैसे बचाएंगे. इसलिए हम लोग जगह जगह जाके मॉक ड्रिल और डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. अभी आपने देखा होगा नॉर्मल कि हमारे यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा जिसके अंदर काफ़ी सारी कैजुअलिटी हमें मिली. बाई चांस मान लीजिए कि हमारे सामने कैजुअलिटी आ जाती है, लेकिन हम वहाँ जाके कैजुअलिटी को देखें कैसे, किस तरीके से उठाएं. उसके अंदर आता है हमारा 5 स्टेज ऑफ रेस्क्यू, सर्च और रेस्क्यू. सर्च सबसे पहले हमें जाके सर्च करना होता है कि किस बिल्डिंग में किस जगह कौन सी हानि पहुंची है. हमने बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं करना डायरेक्ट जाके, सबसे पहले हमें उसे सर्च करना होता है कि बिल्डिंग किस जगह से डैमेज हुई है. मान लीजिए हमने उसे सर्च नहीं किया और हम सीधा जाके बिल्डिंग के उसी हिस्से पर चढ़ गए जिस जगह से वो टूटी है या वो कमजोर है, तो क्या होगा, आप लोग भी वहां से जाके गिर सकते हैं, आपको भी चोट लग सकती है. हम भी आंखों पे लाइट मार के वो देखता है कि उसकी पुतलियां सिकुड़ रही है या नहीं सिकुड़ रही. टेक्निक्स क्या होता है. देखिए, नॉर्मल रूप होता है कि जब कैजुअलिटी को हम लोग लेते हैं, जब हमारे सामने कोई अनकॉन्शियस कैजुअलिटी होती है, हार्ट पेशेंट हमारे सामने बाई चांस ऐसा आ जाता है, तो हम लोग उसको सीपीआर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो उसकी ब्रीथिंग है, जो उसकी सर्कुलेशन है, वो दोबारा चालू हो जाए. दोबारा चालू होने का फायदा, क्योंकि जो हमारे ब्रेन के जो सेंस है, जो हमारे ब्रेन के सेंस होते हैं, वो हमारी ब्रीथिंग और सर्कुलेशन रुकने के बाद भी 3 मिनट्स तक काम कर सकते हैं. 3 मिनट्स तक काम कर सकते हैं. इसलिए हम उसको जल्दी से जल्दी सीपीआर प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसकी कार्डिक मसाज करें या उसको माउथ में रेस्पिरेशन दे तो वो जीवित हो जाएगा. लेफ्ट तरफ आके खड़े हो जाना है, राइट हैंड लेफ्ट साइड आके खड़े हो जाना है. आमने सामने 2 लोगों को नॉर्मल खड़ा होना है. उसके बाद दोनों नीचे बैठ जाते हैं. बैठने के बाद कैजुअल एक जो रेस्क्यूअर उनके राइट साइड बैठा है, वो अपना लेफ्ट हैंड उनके सर के नीचे लगाता है. ठीक, लेफ्ट हैंड सर के नीचे लगाएगा और दूसरा अपना राइट हैंड से उसके सामने वाले कैजुअलिटी का राइट हैंड को ग्रिप करता है नीचे से, और दूसरा का रेस्क्यूअर उसके पैर को ग्रिप करता है, और एक कमांड पे उठते हैं. अब नॉर्मल उठा दो, नॉर्मल बस बीच में लो ना इसको. हम इसको नॉर्मल रूप से लेके और शिफ्ट कर देते हैं. अगर मान लीजिए छोड़ दीजिए, बस काट दीजिए. अगर मान लीजिए कैजुअल हमारे पास कोई नॉर्मल रेस्क्यूअर है,
हमारे पास कोई नॉर्मल रेस्क्यूर है तो हम उसके इम्प्रोवाइज मेथड बनाए थे, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर। एक बेडशीट द्वारा हम 2 डंडों की सहायता से एक स्ट्रेचर जल्दी से तैयार कर देते हैं। बिल्कुल सीधा बिछा देना है नीचे, नॉर्मल एकदम। अब आपने 2 डंडों की सहायता से एक स्ट्रेचर तैयार करना है। आपने पहला डंडा उसके 1/3 हिस्से पे रखना है, फोल्ड कर दो अंदर, बस अंदर एकदम मोड़ दो, उधर उधर सीधा कर दो। फोल्ड करने के बाद आपने दूसरा डंडा उसी तरफ साइड में रख दिया है, इसको फोल्ड कर दो। जी लेट दो, पीछे के लेट देना पूरे, और पीछे बस। 4 जन लग जाए, चारों लोगों के हैंडल पे, हाँ चारों के आपके ऊपर डालना है ग्रिप। आप नॉर्मल एक शीट बना देते हैं जिसको कहते हैं 2 हाथों की गद्दी। हम एक गद्दी का रूप दे देते हैं उसे और नॉर्मल कैजुअलिटी को उसके ऊपर बिठाते हैं और शिफ्ट कर देते हैं। सुनो भाई, ग्रिप्स करना है। ग्रिप्स करने से पहले आप देख लीजिए आपके नेल्स वगैरह बड़े तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो आप अपना हैंकी या फिर कोई रुमाल, कागज आप रख सकते हैं ताकि आपके पसीने वगैरह आए तो हाथ स्लिप ना हो। सामने सीधा कर सकते हैं और उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसको लिफ्ट करके उसको शिफ्ट करना है। आइए एक आवाज अब इनके पैरों को सपोर्ट दीजिए, नॉर्मल सीधा कर दीजिए, समझ आया? अब इनको वहां तक लेके जाइए, वापस आइए, लेके जाइए वहां तक सीधा, और इसको उठा लेना है सीधा। आप एक चीज का खास ध्यान रखें, जब हम इसे लेके जाएंगे तो जो कैजुअलिटी है उसको आगे दबा के रखना है, उसको आगे की तरफ दबा के रखना है ताकि जो उसका गैप है वो खुले ना। I think today's drill would have given a fairly good idea to all of you as to how to handle any emergency situation. As part of our emergency evacuation and emergency preparedness training, we will continue to hold such training sessions in future as well. Till then, have a safe day.